कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की चीट शीट में करवा रही हूं, राइट। आगे बढ़ते आप देखना टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, आप पिछले 4 या 5 दिन से मेरे साथ मॉक टेस्ट पेपर्स कर रहे हैं, आप रियलाइज करेंगे दैट whatever I am doing, everything will come from the cheat sheets. Is that clear everybody? कल्पना, देवांशु, BTR गेमिंग, जो भी मैं आपको सुबह मॉक टेस्ट पेपर्स में कराऊंगी, everything will come from the cheat sheets. ठीक है, आइए सबसे पहले आ जाओ बेटा, फंक्शन क्या है मॉडिफाई करने का स्टेम को? स्टोरेज ऑफ फूड, पेरिनेशन, दैट मींस वी आर एबल टू स्टोर देम फॉर लॉन्ग टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये वर्ड प्लीज याद रखिएगा, अनफेवरेबल कंडीशन, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट। राइजोम किसमें होते हैं? जिंजिबर ऑफिशिनेल, कुरकुमा लौंगा, कैना लिली। एमसीक्यू में तीनों आते हैं, जिंजिबर ऑफिशिनेल, टर्मरिक, कुरकुमा लौंगा, कैना लिली। ट्यूबर होता है पोटैटो, सोलानम ट्यूबरोसम। कॉर्न, कोलोकेशिया, अरबी इज कोलोकेशिया। जमीकंद, टाइटेनम एरम, जिसकी लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेसेंस भी होती है। कैन यू राइट दिस डाउन? Can you write this down? Sharon, I will try and give PDF, but please अभी पढ़ाई कर लो, please. Done? Please PDF की बात बाद में करेंगे, पहले सुन लो, एग्जाम में यही आएगा। Bulb is present in Allium cepa, onion, Allium sativa, garlic. Let me repeat the botanical names again. Bulb is found in Allium cepa, Allium sativa. Corm is found in Zamicum, which is Titanum arum. It is found in Arabi, which is Colocasia. Tuber is found in Solanum tuberosum. Rhizome is found in Zingiber officinale. Turmeric, curcuma longa, and canna lily. It's meant for storage of food and perination. Write here on the chat section. Please make sure that you're liking, sharing, subscribing. Lag nahi ho raha hai beta. Now let us come to the subaerial. Those are the underground modifications. Let us come to the subaerial modifications. The subaerial modifications are the ones which are slightly above the surface of the soil. Lawn grass has a runner cynodon, जिसको आप डूब ग्रास भी कहते हो, डूब ग्रास। Oxalis, very important, right? Hydrocotyl, Centeno asiatica. Stolon, runner is one internode long which is on the surface of the soil. ऐसे stolon goes up and comes down, right? ऊपर को जाता है, अपने वेट से नीचे आता है, that's why it's found in strawberry, it's found in colocasia. Mentha usually has suckers also, and jasmine. Commonest example would be strawberry. Write this down. Offsets is runner, but it is found in the aquatic plant. Right? It is found in aquatic. So your water hyacinth, which is referred to as Eichhornia. Pistia stritose, which is referred to as nothing but Jalkumbhi, which is water lettuce. Water lettuce. Suckers are found in mint. Suckers are also found in chrysanthemum. Right? Mums, chrysanthemums, they have suckers. They suck the nutrition from the main plant. Let us come to the aerial modification. Aerial modification में सबसे पहले आता है tendril, which is for support. Tendrils are found in all the gourds. करेला हो गया, कद्दू हो गया, cucumber हो गया, pumpkin हो गया, watermelon हो गया, अंगूर हो गया. Very important from MCQ. All the citrus plants, including Nimbu, Malta, they have thorns, which is citrus. Done. Thorn is found in Bougainvillea, which is one of the commonest MCQ. हमने कल किया है ये, yesterday. Today or day before yesterday, did you also do Opuntia phylloclade in the class MCQ? Flattened stem. अगर आएगा cylindrical stem, answer will be euphorbia. Euphorbia. Again a modification for photosynthesis is asparagus, जिसमें leaves जो है वो ऐसे spiny बन जाते हैं. Spiny, that is asparagus, जिसको हिंदी में शतावरी कहा जाता है. Cladode. Flattened होगा phylloclade में, spiny बन जाएगा asparagus में. And bulbil of Dioscorea have an active compound which is called Diascorsin. From Diascorsin we have the ability to make something which is referred to as estrogen progesterone. So bulbils, Dioscorea, tricky question, important question. Taproot system होगा dicots में, mustard and gram. Monocots में होगा fibrous root system, wheat and rice. Yesterday did we do a question on monocots, that all the roots come from a point in the stem? Did we do the question? Fibrous root system example was wheat.
Adventitious is from other than radical. No Madhumita, strawberry stolon, other than radical. Adventitious root system होता है पोथोस में. कल परसों हमने prop roots of banyan किए थे for the supporting system. maize में होता है. अगर radical को छोड़कर root कहीं और से आए, which is referred to as the adventitious root system. Now just look root पे type of modification. फ्रूट पे देखिए मल्टीपल फ्रूट, कल हमने एग्रीगेट फ्रूट किया था, राइट? ये देखिए सारा रेटिकुलेट वेनेशन, फाइलोटैक्सी पे आज क्वेश्चन किया था, इंसेक्टिवोरस प्लांट पे क्वेश्चन किया था, ये देखिए आज क्वेश्चन आया था। अच्छा ये देखिए एपिगाइनस पेरिगाइनस पे कितने क्वेश्चंस आए थे आज, सब कुछ करेंगे, आराम से बैठिए। एस्टिमेशन पे भी सुबह क्वेश्चन आया था। सो जस्ट सिट, रिलैक्स, रीड, वी आर गोइंग टू डू इंक्लूडिंग कॉकरोचेस एवरीथिंग। डन? आ जाइए रूट पे। वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग, जस्ट सिट बैक एंड जस्ट कीप डूइंग। वी विल मेंटेन कंसिस्टेंसी, स्पीड। दिस लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन नीट 2021। ओके, आइए गाइस, पीडीएफ में देखोगे पर पहले क्लास में ध्यान दो। पीडीएफ करोगे, क्लास में ध्यान नहीं देते हो। लेट अस कम टू द रूट्स। रीजन ऑफ रूट कैप इज देयर। रूट कैप का सबसे पहला रीजन होता है नंबर 1, देन मेरिस्टेमेटिक रीजन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद आएगा मैच्योरेशन, द रूट हेयर कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन से आएगा रूट हेयर। प्लीज रिमेंबर द ऑर्डर। रीजन ऑफ मेरिस्टम, फर्स्ट इज रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, वहां से रूट हेयर आएगा। इज दैट क्लियर? एम आई राइट? Write a yo every single one. Write a yo every single one. There are two types of root: taproot as well as fibrous root system. It is a main central root upon with small lateral roots. ये जो main root होती है, main root जिसके ऊपर lateral roots आएंगी, इसे कहेंगे taproot system. Write a yo on the chat section. Main जो root नीचे जा रही है, अगर वो bushy बन गई, वर्ड सेंट्रल, मेन सेंट्रल, अगर वो बुशी बन गई, कल का एमसीक्यू याद करो कल का एमसीक्यू एलिंगॉन, बुशी रूट, एक पॉइंट से बुशी रूट, इट इज अ फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस आएगी मोनोकॉट में, टैप रूट आएगी डाइकॉट्स में। राइट है, जल्दी लिख लो, इसी स्पीड से पढ़ते हैं फटाफट, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। रूट का फंक्शन होगा एंकर करना, एब्जॉर्ब करना, स्टोरेज करना, रिप्रोडक्शन करना। स्टोरेज के लिए डाउकस कैरोटा, कोनिकल रूट, नैपिफॉर्म होगी आपकी बीट रूट, फ्यूजिफॉर्म होगी आपकी रैडिश, ट्यूबरस होती है आपकी, ट्यूबरस कौन होता है बताओ? डालिया, राइट? एंड ट्यूबरस आप स्वीट पोटैटो मान लीजिए, फैसिकुलेटेड आप डालिया मान लीजिए, बंडल्स वाली। स्टिल्ट रूट्स, जो आपकी स्टिल्ट रूट्स किसमें होती है? मेज में होती है, सपोर्ट पैंडनोस, मल्टीपल रूट कैप्स। प्रॉप रूट्स किसमें होंगी? बैनियन। बटरस रूट किसमें होंगी? सैंडबॉक्स ट्री, सैंडबॉक्स ट्री। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये क्या है आपके न्यूमैटोफोर्स? एविसिनिया, सोनेरिशिया, हेरिशेरिया हमने कल परसों किया था। ये आपकी प्रॉप रूट्स हैं, ये आपकी स्टिल्ट रूट्स हैं, ये आपकी बटरस रूट है, ये आपकी फैसिकुलेटेड रूट्स हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर डायग्राम आ जाएगा आप कर लोगे, बीट रूट को आप कर लोगे, डायग्राम आ जाएगा, विल यू बी एबल टू डू इट? एपिफाइटिक रूट्स होती हैं आपकी वैंडा, डेंड्रोबियम, ऑर्किड्स, वैंडा, डेंड्रोडियम, ऑर्किड्स। ये किसका डायग्राम है? कुस्कुटा। ये किसका डायग्राम है आपका? एपिफाइटिक रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। हाउस्टोरिया सकिंग रूट्स विच आर फाउंड इन पैरासाइट। आपका लार्जेस्ट प्लांट टेट्रास्टिग्मा वाइन के ऊपर पैरासाइट है, रैफ्लेशिया आर्नल्डी। लास्ट मिनट, जल्दी याद रखो, टेट्रास्टिग्मा वाइन के ऊपर रैफ्लेशिया आर्नल्डी इज अ पैरासाइट, कुस्कुटा इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट, विस्कस एल्बम मिसल्ट्रो हेमी पैरासाइट। याद रहेगा, विस्कम एल्बम हेमी पैरासाइट, कुस्कुटा टोटल स्टेम पैरासाइट, रैफ्लेशिया आर्नल्डी इज अ पैरासाइट ऑन टेट्रास्टिग्मा वाइन। 3 पैरासाइट्स करवा दिए, इसके बाद से क्वेश्चन नहीं आएगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? बीस्ट मोड इज रियली ऑन। एम आई राइट एवरीबॉडी? परफेक्टो, द जिलेटो, और भी ज्यादा बिलेटो, परफेक्टो। रूट मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फंक्शन रूट मॉडिफिकेशन का फंक्शन क्या है? स्टोरेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन विद राइजोबियम, एरियल एंड इवन रूट, राइट? सपोर्ट तो करेगी ही रूट।
फ्यूजिफॉर्म, एक एक एग्जांपल दूंगी, रेडिश, कोनिकल, डाउकस कैरोटा, नैपिफॉर्म, बीटरूट, राइजोफोरा, एविसिनिया, सोनेरिशिया, हेरिशेरिया, न्यूमैटोफोर, राइट एवरीबॉडी, प्रॉप रूट्स, बैंगन, स्टेट रूट्स फॉर सपोर्ट, मेज एंड शुगर केन सबसे ज्यादा है, रट्टा मार, डन डन डन, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, यस एवरीबॉडी, हो जाएगा, सारे चैप्टर्स का आपको ऐसे करवाना है यार अगले 10 दिन में, डन। हरलीन जी, सुवर्णा जी, रीनी जी, बनश्री, एवरीबॉडी, दीपांशी, हो जाएगा, रट्टे लग जाएंगे मेरे बच्चों को, ये वाला टॉपिक तो पूरा रट्टा मार टॉपिक है। अगला सवाल फ्रूट्स पे आ जाओ, राइट। अब ये देखो, ये सारा कुछ बीनेशन वगैरह सब कुछ करना है गाइस, वी हैव टू डू एवरीथिंग। आज सुबह पेरिकार्प का था, आज सुबह मीसोकार्प मैंगो वाला भी था, दो एग्जांपल से पेरिस्पर्म न्यूसिलस वाला क्वेश्चन भी था। एक्सोकार्प इज द आउटर वन, जो नहीं खाते हम मैंगो में, मीसोकार्प और एंडोकार्प, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट व्हिच इज हार्ड, मीसोकार्प इज द फ्लैशी मिडल पोर्शन। आज मैंगो का क्वेश्चन था सुबह। फ्रूट कंटेन्स अदर फ्लोरल पार्ट्स इन एडिशन टू ओवरीज, फॉर एग्जांपल थैलेमस, फॉल्स फ्रूट कहीं लिखा है, कहां गया थैलेमस, थैलेमस, पीच, एप्पल, थैलेमस का बना होता है, जो सिर्फ ओवरी का बना है वो ट्रू फ्रूट, जो अदर पार्ट्स का बना है ऊपर लिखा है फॉल्स फ्रूट, फॉर एग्जांपल थैलेमस, एप्पल, रिसेप्टिकल, थैलेमस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? टाइप्स ऑफ फ्रूट तीन तरह के, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, मल्टीपल फ्रूट्स। कैन यू ऑल सी दैट? सिंगल और सेवरल फ्यूज सिर्फ कार्पल से बना है, आपके एप्रिकॉट का डायग्राम बना हुआ है, वो रहा आपका सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, सिंगल फ्लावर विद मल्टीपल सेपरेट कार्पल, स्ट्रॉबेरी, इनफ्लोरेसेंस से पाइनएप्पल। तीनों फ्रूट्स के एग्जांपल याद है? स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल में हमेशा एग्जामिनर घुमा देता है, अब मेरे बच्चों चुनमुन मुन्नू पुन्नू को घूमना नहीं है। डन? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? डन एवरीबॉडी? याद हो जाएगा? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल fruit is made up of inflorescence. Aggregate fruit is made up of single flower with multiple carpels, but multiple separate carpel, ठीक है। अब आ जाओ, आज सुबह हमने टेस्टा टेगमेंट का पढ़ा था, सीड कोट है, सीड कोट। आज एक क्वेश्चन आया था, गलत कर दिया था, वहां पे यही ऑप्शन गलत था, टेस्टा टेगमेंट को कुछ और लिखा हुआ था, इट वाज सीड कोट। माइक्रोपाइल इज द पॉइंट, हमें पता है जहां से एडसॉर्प्शन होता है, राइट। रेडिकल इज द कवरिंग ऑफ द रूट, जिसका कवरिंग कोलियोराइजा भी होता है। प्लूम्यूल से निकलता है शूट, एंड देयर आर टू कॉटिलिडन्स। सीड आपको पता है दो कवरिंग्स होती है, सीड की कवरिंग होती है टेस्टा टेगमेंट। हमने एक और चीज पढ़ी थी जो आपने काफी बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया था सुबह क्वेश्चन, व्हिच वाज कैरेंकल होता है आपके, कैरेंकल तो वैसे क्वेश्चन में नहीं था, कैस्टर में, और कैस्टर एंडोस्पर्मिक होता है। मोनोकॉटिलिडन सिंगल कॉटिलिडन होता है, इसको कहते हैं स्क्यूटेलम, शील्ड टाइप का कॉटिलिडन होता है। एग्जांपल है कॉर्न, व्हीट एंड राइस, मेज, कॉर्न, व्हीट, राइस, राइट एवरीबॉडी, कॉर्न, व्हीट, राइस। एंड डाइकॉटिलिडन होंगे आलमंड्स, पीज, कैश्यूज। अंडरस्टूड? डन एवरीबॉडी? सुबह 6 बजे लेक्चर है बेटा, कितना स्पैमिंग करोगे आज, ठीक है। अब आ जाओ वीनेशन पे। रेटिकुलेट वीनेशन जो है वो हमेशा डाइकॉट्स में होती है, पैरेलल वीनेशन जो है डीआर याद रखना, रेटिकुलेट वीनेशन डाइकॉट्स में, पैरेलल वीनेशन जो होती है वो मोनोकॉट्स में होती है। रेटिकुलेट वीनेशन के डाइकॉट्स हुए कुकुम्बर, जो कि आपका मोनीशियस है, हिबिस्कस, बैम्बू, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास है, बनाना। अगर अरेंजमेंट जो है वो ऑफ लीव्स का फाइलोटैक्सी होता है, इसे क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट। इसे क्या कहेंगे? ऑपोजिट। इसे क्या कहेंगे? वर्ल्ड। एक पॉइंट पे वर्ल्ड। आपका ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होता है सनफ्लावर, मस्टर्ड, रोज में। ऑपोजिट होता है मेपल लीव्स जो कनाडा का फ्लावर है, गुआवा और थैलोट्रोपिस। वर्ड होता है मीरियम और एल्स्टोनिया, बहुत बार एमसीक्यू में आया हुआ है, रट्टा मार लो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आ रहा है बच्चों? राइट ऑन द चैट सेक्शन, स्नैपशॉट्स लेते रहिए प्लीज। आपका पिनमेट आज सुबह आया था, पामेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन। कितने बच्चों को याद है? एनटीए का क्वेश्चन था, पामेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन आज सुबह किया है हमने।
टुडे मॉर्निंग वी डिड इट पामेट, मैंने ये भी कराया था, एक पे बहुत सारे लगे हुए। सिल्क कॉटन हमने आज सुबह किया है, सिल्क कॉटन पामेटली कंपाउंड लीफ, याद आ रहा है? तो जो छोटे छोटे नीम, टैमरिंड, खड़ी लीफ, स्पिनेटली कंपाउंड, जो एक जगह पे सब लगे हैं, पामेटली कंपाउंड, हेम्प, ऑक्सैलिस एंड सिल्क कॉटन। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? Done? Should I go slowly? Am I going fast? मुझे तो लगा I'm like just trying to revise last minute. Am I? मुझे तो लगा मेरे बच्चों को सब कुछ आता है, I'm just doing last minute revision, फटाफट फटाफट. No, it's fine. Okay, I'll speak in English. I'll speak in English. Done? Spines. Again, leaves are reduced to spines. Opuntia, barberry, prickly poppy and cactus. Pea plant for climbing. Sundew, Drosera, Venus flytrap. They're always growing nitrogen deficient soil. Last cheat sheet में I had done nitrogen cycle. Anybody who doesn't know it, please go and see the nitrogen cycle. It's my request to you. Storage of food is there in onion and garlic. So who does storage of food? Onion and garlic. Is that clear, everybody? They are nothing but they are leaves which store the food. The leaves which are going to store. Now, this is very important. This is very important. Just take a snapshot. This is very important. Let me remove the text from here so that you are able to see even more clearly till the end. Actinomorphin. Did we do this in the morning? Brassica, mustard. Today morning's question. Radial symmetry. Today morning. I am telling you nothing will come from outside the cheat sheet. I will do animal kingdom also. I will do everything. Please don't worry. I will do, promise. Baba, promise. I will do. Don't worry. Right? It takes time to get all the data and put it together. 2 to 3 days it takes to make this cheat sheet. I will do everything. I will do 12th. I will do everything. Okay? Come back. I promise. Radial symmetry. We did it in the morning. It was in mustard. दातुरा में होती है, चिली में होती है, ज़ाइगोमॉर्फिक पी में. इसके अलावा हमने किया था, वो क्या था आपका जो मेरा फेवरेट प्लांट है, अमलतास. अमलतास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अमलतास को कहते हैं केशिया फिस्टुला. फेबिएसी फैमिली मेंबर का ये रहा केशिया. बीन, गुलमोहर. एसिमेट्रिकल होता है आपका कैना लिली, जिसको मैंने आपको राइजोम बताया था. राइट? जिनके ऊपर पेडिसल होगा स्टॉक, उनको कहेंगे पेडिसिलेट. पेडिसिलेट. मैंने आपको कितनी बार, थैंक्स मिनी जी, पर मैं तो सारी रिक्वेस्ट टीचर्स डे के दिन. बाय द वे, आपने वो कम्युनिटी पोस्ट देखा? किसी को कुछ भी बोलना है, किसी अपने टीचर को, कोई स्कूल का टीचर, कोई कॉलेज का टीचर, वेदांत का टीचर, मुझे कुछ बोलना है तो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके उस ईमेल आईडी पे भेज दो. डिड यू सी दैट? डू दैट गाइस. वी आर मेकिंग अ ब्यूटीफुल वीडियो फॉर टीचर्स डे. यस? डन? Just send it to us. Okay? So asymmetrical flowers होंगे आपका कैना लिली. पेडिसिलेट, जिनके पास पेडिसल होगा, जिनके पास स्टॉक नहीं होता, we call them sessile. Right? पेडिसिल जिनके पास होगा, जिनके पास नहीं होगा, sessile. अगर if everybody is taking origin from below the ovary, if everything is taking origin from below the ovary becomes superior. I repeat, if everything is taking origin from below the ovary becomes superior. Hypogynous, that means origin कहाँ से है? Origin जो है वो below ovary है. Ovary बन गई superior. Hibiscus, rosa, sinensis, brinjal and mustard. अगर half inferior है, half superior है, perigynous, rose, plum, peach, ये तो आपको बाई हार्ट है, आप इतनी बार बता चुके हो. परसों किया था हमने रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट. याद बता दो मुझे, याद बता दो मुझे, प्लीज याद बता दो. मेरी इंग्लिश देख लो भाई, इंग्लिश देख लो, माशाल्लाह है मेरी इंग्लिश तो हो रखी. याद बता दो मुझे. इंग्लिश हिंदी का पूरा एकदम खिचड़ी पक चुका है. रे फ्लोरेट्स, इट इज एपिगाइनस. एवरीथिंग इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम अबव द ओवरी. व्हेन एवरीथिंग टेक्स ओरिजिन फ्रॉम अबव द ओवरी बिकम्स inferior. Right? Gamocephalous, the sepals are fused with each other. Polycephalous, the sepals are free from each other. Right? Petals fused with gamopetalous. Petals अगर free है, polypetalous. आज मैंने आपको valvate
imbricate, twisted, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर. Vexillary, right? Vexillary is always found in zygomorphic. Vexillary is also always found in Fabaceae family. So valvate का example होता है Calotropis. Twisted का example होता है one inside one outside like that, China rose, lady's finger in cotton. Imbricate का example होता है Acacia fistula and good mohair. Vexillary का example होता है जो zygomorphic होता है, there's one on the top, there are two on the sides and keel which is fused, जिसका example हमेशा Fabaceae family member होता है. P इसका सबसे common example. If the stamen is sterile, staminate मतलब male plant, pistillate मतलब female plant, but if the stamen is sterile, it is called staminode. If the pistil is sterile, it is called the pistillode. If this is taking origin from on top of the petal, it is referred to as epipetalous. Example, brinjal, epipetalous. And rhizome is taking origin from on top of the petal. अगर stamens जो हैं वो tepal के साथ fused है, lily, perianth, sepal and petal is same. If the sepal and petal is same, it is called the tepal. And if the stamen is taking origin from on top of the tepal, it is called as epiphyllous. What is it called? Epiphyllous. Is that clear? Is that clear? चले आगे. Right? Epiphyllous. चलो. Monoid. अरे ये तो बहुत important है, इसमें तो questions आएंगे. Filaments of all the stamens become fused. Filaments. सिंगल बंडल मोनोएडाल्फस, दो बंडल बनाएंगे फिलामेंट. ये हमेशा चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, सारे फ्यूज्ड है, एक बंडल बनेगा. सारे फ्यूज्ड है, एक बंडल बनेगा. एक बंडल चाइना रोज. डाइडाल्फस, दो बंडल बनेंगे. टी. मेनी बंडल्स, सिट्रस, पॉलीएडाल्फस. Gynoecium consists of two or more carpels and all the carpels are free. Lotus and rose. Lotus and rose. Is that clear? Yes, Banashri. Understood? Syncarpus. Two or more carpels, all of them are fused. Mustard, tomato, और tomato में what else do we eat? कल का question दोबारा आ सकता है. Placenta is edible. अगर fused है syncarpus, free है epocarpus. Arrangement of ovules in the ovary, placentation. Marginal placentation मटर में पेराइटल, PPMA. मैंने याद कैसे किया था? पेराइटल प्लासेंटेशन, मस्टर्ड आर्जिमोन, PPMA. मैंने ऐसे याद रखा था, PPMA. PPMA पेराइटल प्लासेंटेशन, मस्टर्ड आर्जिमोन. आर्जिमोन एग्जाम में आता है. एक्साइल प्लासेंटेशन, लेमन, सबसे इंपॉर्टेंट इसका लेमन, रट्टा मार लो, AL. एक्साइल प्लासेंटेशन. बेसल प्लासेंटेशन में सिर्फ एक एग्जाम्पल आता है, मैरीगोल्ड. फ्री सेंट्रल में सिर्फ एक एग्जाम्पल आता है, डायमंड्स. रट्टा मार लो मतलब मार लो, एग्जाम में आएगा. लेमन एंड टोमेटो है, टोमेटो आने का चांस है 5%, लेमन आने का चांस है 95%. बेसल प्लासेंटेशन में आएगा मैरीगोल्ड. फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन में आएगा डायंथस. ऑन टॉप अगर बड लगाए जो उगता ही चला जाएगा, फ्लावर नहीं है, बड्स ऑन टॉप, पाइपर, अमरांथस. याद है स्पाइकलेट. वीट का देखा है स्पाइकलेट? ग्लूम्स होते हैं, ग्लूम्स के अंदर वीट का दाना होता है. देन वी ब्रेक द ग्लूम्स. पैडी, वीट, बार्ले, सॉर्गम, स्पाइकलेट. कैटकिन झूलता है. प्रोसोपिस जूलियोफोरा, पाइपर नाइग्रम, स्पैडिक्स, स्पेथ, स्पैडिक्स. यस, यहां पे फूल होंगे, व्हाइट या रेड कलर का होगा. देखा है व्हाइट और रेड कलर का, स्पैडिक्स एंड स्पेथ. दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल रेड कलर्ड. ग्रीन वाला जो पत्ता होता है ना, जो सेपल होता है, पेटल नहीं सेपल, वो मल्टी कलर्ड हो जाता है. यस एवरीबॉडी, स्पैडिक्स. So racemose inflorescence where the bud is on top which continues to grow, amaranthus. Spikelet which is glooms, wheat.
Catkin, which is basically inflorescence, which is pollinated by wind. It is very versatile. Prosopis spadix is a commonest example of cocos. It occurs in Nariyal, Phoenix palm, Colocasia. Now, see all, कभी भी explanation नहीं आएगा. Explanation will not come. Last 10 days, please don't go crazy for explanation. Explanation नहीं आएगा, examples आएंगे. AFMC जाना है, examples आएंगे. MCQ में explanation नहीं आएगा. फोटो नहीं आएगी, एग्जाम्पल्स आएंगे. इस टॉपिक से पढ़ लो, पिछले 15 साल के क्वेश्चन देख लो, एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा. इट विल बी एग्जाम्पल्स विच विल कम. पैनिकल, मैग्निफेरा इंडिका, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पैनिकल. डेरोनिक्स रिजिया, गुलमोहर, एलियम सेप्पा, अम्बेल, अनियन, ऐसे व्हाइट कलर का एक फूल बन जाएगा. ऑल ऑफ देम टुगेदर. कॉरिम, केसिपेलिना, राइट. मोनोकेजियल काइंड एक तरफ को उगेगा, राइट एवरीबडी. पोटैटो ही. डाइकेजियल काइंड जैस्मिन, मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे. पॉलीकेजियल काइंड कैलोट्रोपिस. साइमोस कैपिटुलम, माइमोसा, प्यूडिका, अकेशिया. एग्जांपल्स नहीं देखे. आई टेल यू मैंने क्या क्या एग्जांपल्स मैक्सिमम क्वेश्चंस में देखे. रेसिमोस, अमरांथस, स्पाइकलेट, वीट, कैटकिन, जूलियोफोरा, स्पेडिक्स, फीनिक्स, खोखोस, कोलोकेशिया, पैनिकल, मैग्निफेरा, अम्बल, एलियम सेप्पा. Maximum times over and out. I have seen this. Cymos, acacia, mimosa, polycasia, calotropis. Okay, chances 2 or 3%. Understood? Dicasia दोनों तरफ उगेगा. Jasmine, coral, caesalpina. Is that clear everybody? आ गए. BR का मतलब bracteate, EBR का मतलब without bract, bracteolate, without bracteolate, actinomorphic, zygomorphic का symbol. Staminate, that means only male. Pistillate, that means only female. Bisexual, right? It can also come like pedigree analysis. Done? ठीक है. सजा जी मैंने क्लास 11 के लिए बहुत चैप्टर्स करा दिए. प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करा दी, चैप्टर 1 करा दिया, चैप्टर 2 करा दिया. ठीक है. कैलिक्स के 5 मतलब 5 सेपल्स है. 5 सेपल्स जुड़े हुए हैं. कोरोला 5 पेटल्स जुड़े हुए हैं. एंड्रीशियम 1, एंड्रीशियम 3 फ्री हैं. 2 + 2 बंडल हैं. 9 एक साथ. वेरी गुड. डायडल्फस क्लासिकल एग्जांपल. एपिपेटलस देख लो. एंड्रीशियम इज ऑन टॉप ऑफ कैलिक्स. एपिपेटलस देख लो. क्लासिकल एग्जांपल. स्टैमिनोड 0, मेल है ही नहीं. डन एवरीबॉडी. बताओ कैसी लग रही है क्लास गाइस. यार 1 लाइक 1000 लाइक्स भी नहीं हुए अभी तक. क्लास कैसी लग रही है आज की? है ना अमेजिंग. एवरीथिंग इज इन वन एंड दैट यू गॉट, राइट. सबका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट. गाइनीशियम 2 फ्री है, 3 है पर यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है. पिस्टिलोड 0, स्टैमिनोड AO, पिस्टिलोड GO. ये क्या हो गया? Everything is taking origin from below the ovary. Ovary becomes superior. Everything is taking origin from below the ovary. Ovary superior होगी. Everything is taken origin from above the ovary. Ovary नीचे होगी, inferior. Epigynous, hypogynous, बराबर semi inferior. Yes or no? सब कुछ करवा दूंगी बेटा. कुमकुम फ्लोरल फॉर्मूला पे भी आ रही हूं. राइट. इनडेफिनेट नंबर ऑफ यूनिट्स पता ही नहीं है. 5 नहीं, 6 नहीं, गिनती में नहीं आ रहे हैं. ठीक है. आ जाओ. आपको सिर्फ 2 फैमिलीज कराऊंगी, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. 2 फैमिलीज कराऊंगी, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. गारंटी है वानी मैम की, गारंटी. इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, 1 फूल लगेगा. एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलानम. फ्लावर कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक. सोलानेसी मतलब एक्टिनोमॉर्फिक. ब्रासिका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक. फेबिएसी मतलब जाइगोमॉर्फिक. बाइसेक्सुअल होता है. 5 होते हैं देखो. 5 कैलिक्स जुड़े हुए हैं, राइट. वैल्वेट एस्टिवेशन होती है. कोरोला कैसा होता है? 5 गैमो. एंड्रीशियम 5 है. इसका मतलब क्या है? एंड्रीशियम किसके ऊपर है? एपिपेटलस. दोनों जुड़े हुए. सिनकार्पस, बाइकार्पलरी, बाइलॉक्यूलर. डंडी नीचे है. ओवरी बिकम्स
सुपीरियर. दिस इज हाउ. डंडी नीचे. पीडीएफ दे देंगे बेटा. फ्रूट इज बेरी और कैप्सूल. सीड इज न्यूमरस. एंडोस्पर्मस. डन. यो लिलिएसी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? पी और ए का मतलब क्या हुआ? लिलिएसी क्या है? पी क्यों कहा है? सेपल पेटल बराबर है पेरियांथ. यूनिट इज टेपल. पी. यस. फ्लोरल फॉर्मूला ऑफन यूनाइटेड. डन एवरीबडी. फाइब्रस रूट सिस्टम होता है. पेरिनियल हर्ब है. डन. स्टिप्यूल नहीं होता. पैरेलल वीनेशन होती है. 6 स्टेमन्स इन 2 वर्ल्स. ये देख लो. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं. 3+3. गाइनीशियम इज फ्यूज्ड. सिनकार्पस देख लो. ब्रैकेट में है कि नहीं है? ब्रैकेट में है कि नहीं है? ब्रैकेट में है या नहीं है? एक्साइट प्लेसेंटेशन होगी. एंडोस्पर्मिक सीड होगा. ये भी एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिलिएसी में. सबसे इंपॉर्टेंट अम्बलेट वगैरह कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियांथ एंड टेपल. आ जाओ फ्लावरिंग प्लांट्स में. इसकी पूरी एनाटॉमी आपको करवा दी. डन. फिर कॉकरोच वगैरह सब कुछ करना है. पीडीएफ में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी. आप टेंशन मत लीजिए. ठीक है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज बेस्ड ऑन दी ओरिजिन. सबसे पहले क्या होगा? लोकेशन. अगर टॉप और बॉटम पे होगा इसको क्या कहेंगे? शूट अपाइकल मेरिस्टम. इसको क्या कहेंगे? रूट अपाइकल मेरिस्टम. इसको क्या कहेंगे? लैटरल मेरिस्टम. और जो इंटरनोड्स पे होगा उसको क्या कहेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम. अपाइकल मेरिस्टम टिप पे. साइड पे जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा लैटरल मेरिस्टम. और जो इंटरनोड्स पे होगा उसको कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है. इट प्रोड्यूसेस टिप्स ऑफ शूट एंड रूट. इज दैट क्लियर? लैटरल मेरिस्टम क्या करेगा? आपका वुडी प्लांट्स में गर्थ बढ़ाएगा. और जो आपके नोड्स के बीच में होगा वो इंटरकैलरी मेरिस्टम. जो आपके टिप्स में होगा, टिप्स में वो आपका अपाइकल मेरिस्टम. ये 3 पोजीशन रट्टा मार लो प्लीज. 3 पोजीशन रट्टा मार लो. डन. अपाइकल मेरिस्टम, वुडी. और बेटा फेबिएसी फैमिली का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जाइगोमॉर्फिक राइजोबियम. वो मैं आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. इसलिए मैंने सेकंड फैमिली आपको लिलिएसी करवा दी. ठीक है. आगे आ जाओ. ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. परमानेंट टिश्यू क्या क्या होंगे? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली मल्टीपल चीजों के बने होते हैं. सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट सिंपल टिश्यू होता है आपका पैरेन्काइमा, जो फोटोसिंथेसिस करता है, न्यूट्रिशन और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर उसमें एयर आ गई और वो निलंबो फैमिली में, निम्फिया में फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, वो कहलाएगा आपका एरनकाइमा. बेटा ये क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी सेल में रेजिन, टैनिन, गम या वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, दैट इज रेफर्ड टू एज इडियोब्लास्ट. इन एनी सेल इफ देयर इज अ रेजिन, टैनिन, गम्स, any waste material which is stored, we call it idioblast. Collenchyma is the living mechanical tissue. Sclerenchyma is the dead mechanical tissue. Did we solve a question on mechanical tissue today? Yes. Agar if it is green in color, it is called as sclerenchyma. So this is the one which allows flexibility. It will allow the plant to bend. It is the living mechanical tissue. If it has got stone cells, if it has got sclerids, if it is dead, that is called the sclerenchyma. So sclerenchyma has got sclerids, which are the stone cells which are found in guava, and it has got the fibers. Right? They are going to increase the tensile strength, and sclerids will give you the mechanical strength and rigidity and stiffness. Pulp of fruits में stone cell बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं pulp of fruit में? Stone cell. वाव चार्ट है. वाव. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू हो गया आपका. क्या हो गया लिविंग मैकेनिकल टिश्यू? कॉलेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा क्या हो गया आपका? डेड मैकेनिकल टिश्यू. ये देखिए जाइलम और फ्लोएम सारा लिख दिया एक साथ. आज ही हमने पढ़ा था ना वो कौन से कंपेनियन सेल का क्वेश्चन आज किया था या कल किया था? आज कल में किया था. राइट. लॉन्ग और सिलेंड्रिकल जो होंगे, एंड टू एंड जॉइंट होंगे, वॉल्स लिग्निफाइड होंगी, वेसल्स. राइट. इलोंगेटेड विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स, और सिर्फ एंड में एक परफोरेशन होगी, वो कहलाएंगे ट्रेकिल्स. राइट. Fibers are very important because these are the ones who are going to give strength. They are the ones who are present on walls. Right. इनके बीच में may or may not have septae.
ठीक है, ओनली लिविंग सेल इज जाइलम पैरेन्काइमा, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पानी ऐसे फैलता है दिस इज बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। जो पानी रेडियल जाएगा, जो पानी फैलेगा, रेडियल कंडक्शन इज बाय रे पैरेन्काइमा। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट एवरीबडी? डन? ओपी सेशन, बनश्री, अनन्या, बीटीआर, गॉट इट? कंपेनियन सेल सीव ट्यूब्स के साथ होते हैं, आज ही हमने एमसीक्यू किया है। दे आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा लॉन्ग सिलेंड्रिकल, खाने को स्टोर करेंगे। फाइबर्स जूट, फ्लैक्स, हेम्प, बाय हार्ट, बास्ट फाइबर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस। बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर। लावण्या नहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रॉम फ्लोएम प्रोटोफाइलम, बाद में जो बनेगा वो होगा आपका मेटाफोलम। सिमिलरली फर्स्ट फॉर्म जाइलम प्रोटोजाइलम विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, अगर टुवर्ड्स द सेंटर होगा वो होगा एंडार्क। लेटर फॉर्म मेटा, अगर मेटा टुवर्ड्स सेंटर हुआ इट इज कॉल्ड एज एक्सार्क। नीचे करवा दिया, खत्म। फर्स्ट फॉर्म हो गया प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म मेटाजाइलम। अगर फर्स्ट फॉर्म सेंटर में है तो एंडार्क, फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटर में है तो एंडार्क, और मेटाजाइलम अगर सेंटर में है तो एक्सार्क। राइट? प्रोटो मेटा करा दिया, एक्सार्क एंडार्क करा दिया, डन। अब आ जाओ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, हाइड्रोसेंट्रिक को एम्फीक्रिबल कहते हैं, लेप्टोसेंट्रिक को एम्फीबेसल कहते हैं। अगर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अलग, इट इज कॉल्ड रेडियल। अगर वो जुड़े हुए हैं, जाइलम फ्लोएम एक साथ है, डिपेंड करता है बीच में कैम्बियम है या नहीं है। अगर वो जुड़े हुए हैं इसे कहते हैं कॉन्जॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्जॉइंट। अगर वो जुड़े हुए हैं ऑन द सेम रेडियस। अगर फ्लोएम आउटसाइड है और जाइलम इनसाइड है उसे कहते हैं कोलैटरल। क्या कहते हैं? फ्लोएम ऑन आउटसाइड, जाइलम ऑन इनसाइड, पॉज साइड, इट इज कॉल्ड एज कोलैटरल। अगर जाइलम बीच में फंस गया है और दोनों तरफ फ्लोएम है उसे कहते हैं बाइकोलैटरल। और अगर एक दूसरे को सराउंड कर रहा है तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक। जाइलम फ्लोएम अगर सराउंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक। इज दैट क्लियर? डन। आस्था जी, और बाइकोलैटरल समझ में आ गया? ये दिख रहा है, जाइलम इज सैंडविच्ड बिटवीन आउटर इनर फ्लोएम। डन। कैम्बियम, is that clear? Bicollateral, xylem is sandwiched between outer and inner phloem. Collateral close, xylem phloem without cambium. ये क्या होगा? Open cambium. Leptocentric phloem बीच में बाहर xylem, hydrocentric xylem बीच में बाहर phloem. Is that clear? चलो, कल सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट है बेटा, पहले पढ़ाई कर लो तुम लोग। कैम्बियम प्रेजेंट दिख गया? ये तो बता दें, कैम्बियम एब्सेंट, क्लोज्ड, कैम्बियम प्रेजेंट, ओपन, फ्लोएम सराउंड जाइलम, एम्फीक्रिबल, फ्लोएम सराउंड जाइलम, एम्फीबेसल, लेप्टोसेंट्रिक, जाइलम सराउंड्स फ्लोएम। जाइलम बाहर है, लेप्टोसेंट्रिक और एम्फीबेसल, जाइलम इनसाइड है, एम्फीक्रिबल और हाइड्रोसेंट्रिक। याद रख लो प्लीज, याद रख लो। डन। 2021 के मैथ्स कोर्स याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट करा रही हूं। अब इधर आ जाओ, बड़ा डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, सब कुछ रट्टा मार के फटाफट इतना ही पढ़ना है। आज एंडोडर्मिस पे क्वेश्चन किया था, सुबेरिन पे क्वेश्चन किया था, सब कुछ रट्टा मारने वाले हैं। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिब्लेमा, एपिब्लेमा में होते हैं रूट हेयर सेल, जो रूट हेयर सेल है वो एब्जॉर्ब करेंगे पानी को। डन। डन, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, सिंगल लेयर होंगे, रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ उस चीज पे अंडरलाइन करने वाली हूं, उस चीज को फोकस करने वाली हूं जिस पे एमसीक्यू आता है। बाकी चीज अभी लास्ट के 10 दिन बचे हैं यार, इतना तो मेमोरी में भी नहीं जाएगा। ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर होता है रूट हेयर,
आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं एपिब्लेमा, ठीक है, आउटर कवरिंग को कहते हैं एपिब्लेमा। ये पूरा क्या होता है, कॉर्टेक्स। आज किया था हमने, बाहर से लेके एपिब्लेमा, इस रीजन से लेकर यहां तक पूरा क्या है, कॉर्टेक्स। ये इनर मोस्ट लेयर क्या है कॉर्टेक्स की, एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड सेल होते हैं, उनको क्या कहेंगे, पैसेज सेल्स। ये पैसेज सेल से अंदर क्या चला जाता है, पानी। और बाकी पूरी एंडोडर्मिस में क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पे क्या लगा होता है, लिग्निन एंड सुबेरिन। ये पानी को अंदर, इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू गो इनसाइड, इट कैन ओनली गो इनसाइड फ्रॉम द पैसेज सेल्स। Is that clear? Is that clear? Then cortex is endodermis, it has pericycle, which is the thin walled parenchyma cells, and the innermost portion is called pith. Today we did a portion. Pith is very small, you can't see it. So dicot root, the pith is very small. It is inconspicuous, you cannot really see it. Done? The vascular bundles are exarch, protoxylem is towards the outside, exarch. Did you see that? Protoxylem is towards the outside, endodermis and pericycle. Endodermis is the one which has the U-shaped cells, which are nothing but the Casparian strip. It has cells which allow the water to go, which is called the passage cells. Is that clear? And xylem and phloem lie on different axes. Let us come to monocot root. In the monocot root, first of all, you need to remember parenchymatous cell, again epiblema, unicellular root hair, endodermis, Casparian strip, mostly barrel cells, but the most important thing is pith is well developed, no secondary growth. Pith is very well developed, right? Is that clear? More than 8 number of xylem and phloem, polyarch, and vascular bundle is exarch. Pith is very well developed. That is the only thing. Small pith, well developed pith. Please remember this. Small pith, dicot root, monocot root. Questions will come from here. Last moment you remember this. Let us come to dicot stem. The biggest and most important thing which I want you to see in dicot stem and remember it is, it will have cambium. It will show secondary growth. Next most important thing, epidermis आपको पता है, compact parenchyma cells. Stem will always have hair, trichome. Very important. The cortex will be of 3 types. The photosynthetic green young stem is called parenchyma. Right? Then it will be modified in green color chlorenchyma, and then it will become hard, herbaceous collenchyma. Endodermis barrel shaped cells बिल्कुल भी आपकी कोई भी स्पेस नहीं होती है. Endodermis also helps in storage of food. Understood everybody? Understood? It is सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है. ओपन MCQ number 1. Then obviously collateral and conjoint. Done? No intercellular space. Collateral and conjoint. Is that clear? Understood? Chunu Munu gangsters, is that clear? Is that understood? Pakka? Promise wa? Okay. That's the most important thing. बाकी सब उसके बाद होगा. ठीक है? Awesome blossom, awesome blossom. Steel. Pericycle vascular bundle. More medullary rays. There are going to be medullary rays which are going to be there. ठीक है? Dicot stem will have medullary rays. Monocot stem will not have medullary rays because monocot stem is scattered. ठीक है? Monocot stem में आपने सिर्फ एक चीज अलग से याद रखनी है. Dicot stem से monocot stem is closed. Dicot stem is open. Scattered vascular bundle. That is why no secondary growth. That is why आप grafting भी नहीं कर सकते. No cambium, scattered vascular bundle, grafting नहीं कर सकते. अब इस पे आ जाओ. यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे आपके बुलिफॉर्म सेल्स के, यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे आपके स्टोमेटा के, आइसोबाइलैटरल और डॉर्सीवेंट्रल के. तो जो मोनोकॉट लीफ होता है, आप डाइकॉट लीफ देख लो. ऊपर आपको पैलिसेड पैरेंकाइमा दिखेगा, नीचे स्पॉन्जी पैरेंकाइमा दिखेगा. तो पहले डाइकॉट देखो. ऊपर आपको दिखेगा पैलिसेड पैरेंकाइमा, हमने आज भी किया था. नीचे आपको स्पॉन्जी पैरेंकाइमा. दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सीवेंट्रल लीफ. ऊपर और नीचे की सरफेसेस अलग होती हैं. अपर सरफेस इज मोर ग्रीन. अपर सरफेस मोर ग्रीन क्यों है? पैलिसेड पैरेंकाइमा है. यहाँ पे किडनी शेप्ड स्टोमेटा होता है. मोनोकॉट लीफ में डंबल शेप्ड स्टोमेटा होता है. राइट इट डाउन.
डम्बल शेप, यहां किडनी शेप्ड, मोर ऑन द लोअर सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एनाटॉमी का, मोनोकॉट लीफ डम्बल शेप्ड, write it down, right? Mesophyll is differentiate into palisade parenchyma and नीचे वाला sp कर देते spongy parenchyma, ये रहा, right everybody? Closed leaf is always closed, collateral and conjoint, understood everybody? और midrib होती है which is chloranthymatosis. अब इधर आ जाओ, इसका लीफ कैसा होगा, यहां आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? बोथ सरफेस इक्वल ग्रीन बिकॉज मोनोकॉट क्या है, आइसोबाइलैटरल, IBL, isobilateral, there is no upper palisade, lower spongy, दोनों बराबर है, isobilateral, right? Dumbbell shaped MCQ, undifferentiated है, no PP, no spongy parenchyma, वहां थी reticulate venation, यहां होगी parallel venation, is that clear everybody? और इसके पास वहां पर देखो parenchyma bundle sheath extension, स्क्लेरेंथाइमा, मोनोकॉट लीफ को स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मेज लीफ को स्ट्रेंथ चाहिए होती है, स्क्लेरेंथाइमा, प्लीज ये स्क्लेरेंथाइमा और डम्बल शेप, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ रहा है, 100% आ रहा है, याद रखना, ये स्क्लेरेंथाइमेटस और डम्बल शेप, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ रहा है, मेरे गले की कसम अभी पढ़ लो, डन, 100% आ रहा है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? किडनी शेप्ड, मोर ऑन लोअर सरफेस इंपॉर्टेंट है, आ जाओ कॉकरोच पे, ठीक है? कॉकरोच की तो ये जो 2 स्लाइड्स है ना, इन दोनों स्लाइड के बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना याद रखना, जितनी 2 स्लाइड में करवा रही हूँ, जो 2 स्लाइड में करवा रही हूँ इतना याद रख लेना बस, ठीक है? 11 बजे आज टेस्ट है, पता है ना, 11 o'clock टेस्ट है बेटा, राइट? कॉकरोच, कॉकरोच का साइज होता है 1.4 इंचेस टू 3 इंचेस, 34 to 53 mm। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ट्राइंगुलर हेड, इट इज एट 90 डिग्री टू द बॉडी, राइट एंगल, सेकंड क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, हेड बना होता है 6 सेगमेंट्स का, एब्डोमेन होता है 10 सेगमेंट का, आज सुबह किया था 7 सेगमेंट इज बोर्ड शेप्ड, 8th and 9th सेगमेंट फॉर्म द ब्रूड और जेनाइटल पाउच, और एंटीरियर पाउच और ब्रूड और जेनाइटल पाउच में गोनोपोल कर लोगे। ट्राइंगुलर आता है एग्जाम में, राइट एंगल आता है, हेड 6 सेगमेंट का बना होता है, 7 सेगमेंट, 8 सेगमेंट, 9 सेगमेंट इन फीमेल इज कॉल्ड एज ब्रूड, ब्रूड पाउच, राइट एंगल तो हमेशा आता है, हाइपोग्राइनस राइट एंगल, ठीक है? मेन जेनाइटल पाउच होगा 9th और 10th सेगमेंट में, 10th सेगमेंट में होगा एनल सिरसाइड, 50 करोड़ बार क्वेश्चन आ चुका है, ब्लाइंड सैक्स को हेपेटिक सीके कहते हैं, ये आया हुआ है, हेपेटिक सीके डाइजेस्टिव जूस करते हैं, सीक्रेट हेपेटिक सीके, ठीक है? मिड गट और हाइंड गट में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है, कितनी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल होती है, 100 to 150 एक्सक्रीशन में काम करती है, रेस्पिरेटरी के लिए ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया खुलता है 10 पेयर्स, आज सुबह भी एमसीक्यू में था, मैच द फॉलोइंग में, स्पाइरकल्स, आई में 2000 ओमेटिडिया होते हैं, किस टाइप का विजन होता है, मोजाइक विजन होता है, मोजाइक विजन होता है, राइट? आज सुबह किया था वो डेड कॉकरोच वाला एग्जांपल, क्योंकि 3 गैंग्लिया थोरैक्स में और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में, ब्रेन अकेला नहीं होता, जो डेड कॉकरोच वाला किया था 3 गैंग्लिया इन थोरैक्स एंड 6 गैंग्लिया इन द एब्डोमेन, डेड कॉकरोच की बॉडी, यही क्वेश्चन था वो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है 4th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, मशरूम शेप्ड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है, फीमेल सिस्टम होता है 2nd और 6th में, स्पर्माथिका, मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं किया, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेगमेंट्स में पहले क्वेश्चन आते थे, ये इंपॉर्टेंट है, स्पर्माथिका 6th में, ऊथिका 8 mm लॉन्ग होता है, फीमेल्स प्रोड्यूस करती है 9 to 10 ऊथिका, हर एक ऊथिका में 14 to 16 एग्स। निम्फ पे क्वेश्चन पक्का आएगा, मोल्टिंग करता है 13 बार और लास्ट मोल्टिंग में विंग्स डेवलप हो जाते हैं,